What are your top 3 anti-aging ingredients? Now I want to ask you about skin whitening creams like Fair and Lovely. अगर आपको फोरहेड पे एक्ने आ रहे हैं सो दैट मीन्स कि आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि स्कैल्प पे डैंड्रफ तो नहीं है. Masturbation can cause acne. Myth. अभी पीछे थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि केराटिन ट्रीटमेंट कराने से हेयर के लिए एक लड़की की किडनी डैमेज हो गई. तो केराटिन का किडनी से कोई रिलेशन हो सकता है? स्ट्रेस कॉजेस wrinkles as well? No. आजकल हर एक इंसान को कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम्स है, be it acne, hyperpigmentation and whatnot. But the main problem is कि there's so much misguided information in the market कि हमारे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम वो वायरल प्रोडक्ट यूज करें या ना करें. इसलिए आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट आए हैं जिन्होंने क्लियर किया है the difference between a dermatologist, a cosmetologist. She has mentioned very clearly कि आपको कौन से ऐसे viral मार्केटिंग गिमिक्स फैड्स में नहीं फंसना है एंड कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए अपनी स्किन टाइप के हिसाब से. उन्होंने डिस्कस किया है अबाउट फिलर्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, हाउ टू अचीव दैट बॉलीवुड स्टाइल smooth looking skin. So do watch this podcast till the end and share it with at least one person who might need it. So let's get into the video. Hi Dr. Gitika, how are you doing today? Hi Anshika, I'm good. How are you? All good, thank you. Really happy to have you here on the podcast today. Have been waiting since a very long time to discuss on this topic because it's so common these days and it's such a hot topic कि people actually want to know about skincare and all the procedures that are so prevalent in the market these days. So really excited for this one. So आजकल ये skin treatments, laser, botox ये सब कितना common हो चुका है, right? And I would say every 5 kilometers में there's at least 2-3 different derma clinics. So what do you think कि किसके पास जाना चाहिए since ये market इतनी ज़्यादा crowd हो चुकी है and एक dermatologist and एक cosmetologist के बीच का difference क्या है? Okay, Anshika, I would like to answer that. Okay, so पहली बात dermatologist क्या है? Dermatologist is someone जिसने somebody who's cracked that postgraduate exam, have cleared it, and it's a proper 3 years training. Okay. So that's a dermatologist, right? So you are saying cosmetology is no degree. Okay, so I would just like to tell you कि आप बड़ी बड़ी चेन्स में जाइए. You're saying कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट है, इतनी तो सीट्स नहीं है. ठीक है. सो दैट मीन्स इतने सारे डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है मार्केट में. जो हमें लगता है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बट दे आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट. आई वुड नॉट लाइक टू नेम द चेन्स बट आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आप जाइए क्लिनिक में, आप मैनेजर को बोलिए आई वांट टू मीट द डॉक्टर. ओके, सो दिल टेक यू टू द डॉक्टर बट have you ever asked ki that doctor is a dermatologist or not? Okay. So sometimes people, their naming is that aesthetic physician, as a cosmetologist. So all these these things are not I would say these people are not dermatologists. So all I want you to understand is that for your skin, how can you trust somebody who has done a 3-day course or a 5-day course for your skin, for your hair? So that's one thing. Right. भाई आजकल बहुत सारे न्यू एज स्टार्टअप्स भी आ गए हैं जो घर पे आके लेजर हेयर रिमूवल कर रहे हैं एंड केमिकल पील्स कर रहे हैं. सो यू थिंक दैट्स completely unsafe? Totally. Because you cannot guarantee safety. They are using what machines? Are they FDA approved machines? Or these are what technicians doing. There is no supervision. So either a dermatologist is doing this or maybe there's a supervision. Okay. So without supervision you are getting all these things at home. So I mean you have to judge your own safety. Yeah. And how effective are these? Yeah. Who will you call to say okay this thing is working or this thing is not working? Yeah. So I would say that's a complete risk and I think a total money waste as well. Okay. So आजकल बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो अपने नाम से सप्लीमेंट्स या फिर मेडिसिन देते हैं क्योंकि आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, ये सप्लीमेंट खा लो नहीं होगा, या फिर एक्ने हो रही है, स्किन क्लियर हो जाएगी, ये सप्लीमेंट खा लो. एंड ये सो इट्स लाइक अ कस्टम फॉर्मुलेशन फॉर यू जो शायद आपको बाहर नहीं मिलेगी, इसलिए आप हमारे वाला सप्लीमेंट लो. डू यू थिंक these things actually work like a magic? Yeah, it's a fad. No, it's a complete fad. But ingredients का कितना percentage है वो बताया नहीं जाता. Okay. So do you think is it safe? It's not safe actually.
in every FDA approved or all these drugs, whatever we are getting in the market, all these go through quality checks. Okay, yeah. And the percentage, the ingredient should be clearly specified. So I wouldn't recommend anybody going for things which is not, it's not clear. The composition is not clear. Yeah. So it's a risk thing. Yeah. Okay. Does diet have anything to do with hair fall or acne? Okay, so yes, diet has a role. So, when you're consuming high fatty diet and, something like full cream dairy products, so they do, because sometimes, they are linked to other hormonal issues as well. Okay. Like, there is a increase in body weight. You might, have PCOS associated with it. And eventually, when there is more inflammation in the body and more sebum production, that can cause acne. Okay. अब जैसे किसी का बॉल्डिंग हो रही है, लाइक मेल पैटर्न बॉल्डिंग या फिर फीमेल पैटर्न बॉल्डिंग, सो डज दैट आल्सो हैव समथिंग टू डू विद डाइट, या फिर इट्स मोस्टली हार्मोनल या जेनेटिक पर डिपेंड, सॉरी जीन्स पर डिपेंड करता है? सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ओके, सो हेयर लॉस हम दो तरीकों से डिवाइड करते हैं. व्हाट यू आर टॉकिंग इज डिपेंडिंग ऑन, अगर वो पैटर्न हेयर लॉस है, जैसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, उसमें सेंटर से वाइटनिंग शुरू होती है, या मेल पैटर्न है जब साइड से हेयर जाने लगता है या पीछे से हेयर जाने लगता है. Okay. सो दीज काइंड्स ऑफ हेयर लॉस डू नॉट हैव अ डायरेक्ट लिंक विद डाइट. Okay. So, okay, going just for a vitamin and thinking that it can be treated, so it's not there. So, Okay. multiple factors are there, and most probably, genetics, they are involved, and other things. So, one should evaluate first and then go about the treatment. Okay. What do you think about these anti-dandruff shampoos for acne? Like, जैसे बहुत लोगों को dandruff की वजह से forehead पर pimples होते हैं. Do you think these anti-dandruff shampoos work? So yes, अगर आपको फोरहेड पे एक्ने आ रहे हैं, so that means कि आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि स्कैल्प पे डैंड्रफ तो नहीं है. क्योंकि क्या है कि आपने एक्ने ट्रीट कर दिया, लेकिन आपने एक रूट कॉज नहीं ट्रीट किया. तो उसका रूट कॉज अगर डैंड्रफ है और अगर हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो वापस होता रहेगा. So we have to treat the dandruff as well along with the acne, and definitely it can help to prevent the recurrence. दोबारा नहीं होंगे वो एक्ने. Okay. Otherwise वो चीज दोबारा होती रहेगी and हम वहीं अटके रहेंगे. Yeah. Okay, one more important question. According to studies, India में urban population को, I would say around 50% of urban population is dealing with acne and skin issues. But on the other hand, अगर आप rural population को देखो तो there's just about 10-20% of the rural population जिनको acne या फिर कोई skin issues है. So why is that कि urban areas में ज़्यादा लोगों को acne हो रहा है? Is it because of lifestyle? Is it because of this pollution? What is the main cause, and उसको prevent कैसे कर सकते हैं? Okay, so actually you are right. See, all these lifestyle things are definitely more in the urban setup. Yeah. Right? So the pollution thing, the lifestyle, the stress, ये सब जो है ये acne को बढ़ाता है. Right? Okay. So, but एक चीज और भी है, urban population ज्यादा aware भी है. ठीक है, आज अब एटलीस्ट अर्बन पॉपुलेशन में सबको पता है मुझे एक्ने हो रहा है. ठीक है, रूरल में इस चीज को थोड़ा सा इग्नोरेंस फैक्टर भी आप एक मानेंगे कि पीपल आर नॉट नोइंग कि अच्छा ये एक्ने हो रहा है. दे जस्ट थिंक दाना हो गया है एंड दे टेंड टू इग्नोर इट. ठीक है, तो ठीक है कि अर्बन में ज्यादा चीजें अफेक्ट कर रही हैं, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, बट आई थिंक कि अवेयरनेस ज्यादा है. Okay. So both ways, Okay. So like you said, कि stress, yes, it causes acne. Yes, definitely. Directly link भी है, indirectly link भी है, but stress एक one of the very very important factor in causing acne. Okay. One more important question. Stress causes wrinkles as well? No. Eventually in long term, if you're stressing a lot, then you might get some fine lines. Okay. If making some expression, suppose somebody is angry, you're making a face like this. Yeah. So you might get those lines, deeper lines. Okay. But that's not the major factor for these lines. Okay. Aging is. All right. I want to ask about these anti-acne face washes and creams. क्योंकि इससे आपको acne नहीं होगा, इससे आपकी pimples बैठ जाएंगे. Do you think they actually work? See, basically अब ये फेस वॉश जब हम लगाते हैं वो हमारी स्किन की कांटेक्ट में कितनी देर आ रहे हैं? Hardly for a few seconds. Okay, so see, ट्रीटमेंट के लिए फेस वॉशेस नहीं है. पहली चीज तो ये समझनी जरूरत है. Okay. So किस टाइप का एक्ने है
तो उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट है। Okay. सो फेस वॉश से आपका फेस क्लेंजिंग होती है, एंड प्लस जो सीबम है, अगर ऑयली फेस है तो वो ठीक हो सकता है। बट Okay. कंसिडरिंग के फेस वॉश से एक्ने ठीक हो जाएंगे या फेस वॉश से एक्ने नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। Okay. Okay, one more very important question. अब दो टाइप की ना स्किन केयर बढ़ चुकी है कि देर इज वन सेगमेंट जिसमें एकदम कम्प्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं टू बी स्पेसिफिक, जैसे फॉरेस्ट एसेंशियल्स हो गया, कामा आयुर्वेदा हो गया. ऑन द अदर हैंड देर इज दिस एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड स्किन केयर, लाइक ब्रांड्स लाइक ऑर्डिनरी, मिनिमलिस्ट, ये सब. तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है? ओके, सो बेसिकली देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉस्मेस्यूटिकल्स, एक होता है फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, कॉस्मेस्यूटिकल्स जो है ये जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स है, अब इनकी परसेंटेजेस बहुत ही लो रखी जाती है. ठीक है, तभी वो मार्केट में बहुत रेडिली अवेलेबल है, ऑनलाइन मंगवाओ बहुत इजीली मिल जाता है, राइट? Okay, yeah. बट सी, what medicine is, it's evidence based medicine. So I always believe in going for active ingredients and evidence based medicine. Okay. So always pharmaceutical products than cosmeceuticals products. Okay, another very important question कि कोरिया, जापान, यहाँ पर लोगों की स्किन इतनी क्लियर होती है. There is this major virality over social media regarding Korean glass skin. So what's your take on that? हम कोरियन ग्लास स्किन कैसे अचीव करेंगे? सो ऑल दीज थिंग्स ना ये टेम्पररी होती हैं. अभी मैं बोलूँ आप मॉइस्चराइजर लगाओ आपको डूई ग्लो आ जाएगा. सो ग्लास स्किन ऐसे ये चीजें टेम्पररी होती हैं, मतलब परमानेंट नहीं आ सकता. कि हम कहें कि हमारी इंडियन स्किन है, ओके मैंने एक महीना ये क्रीम लगाया, I'll get a कोरियन ग्लास स्किन. लो, Okay. सो ये चीजें परमानेंट नहीं है, एक दो दिन रहता है एंड देन इट गोज डाउन. सो आई डोंट थिंक द पीपल शुड गो टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वो चीज इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव. Okay. अब लोग 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर कर रहे हैं, नाइट टाइम रूटीन कर रहे हैं. यू थिंक इट्स अ कंप्लीट फैड फॉर इंडियंस? Yes, I totally feel that because सेम चीज कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारा इन्वायरमेंट अलग है, हमारा एक्सपोजर अलग है, सब कुछ अलग है. हमें कोरियन स्किन नहीं मिल सकती है, बट लेकिन मैं वही कह रही हूँ, ये चीजें ना टेम्पररी होती हैं. ये चीजें आप लगाते हो, आपको एक दो दिन ऐसा लगता है ओ समथिंग इज डिफरेंट, बट देन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल. Okay. सो इट्स देयर. सो टेम्पररी रिजल्ट्स के लिए अच्छा है, बट ये सोचना कि मेरी स्किन इंडियन से कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी, वो एक कंप्लीट मिथ है, वो नहीं हो सकता. Okay. What do you think about Hydra facial? You think it works? यस. Okay. अब जैसे किसी की ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो क्या उन्हें हाइड्रा फेशियल कराना चाहिए या नहीं? अगर ऑयली स्किन है तो सी ये सब ना ट्वीक हो जाता है. Okay. अगर कोई अनट्रेन्ड बंदा कर रहा है, उसको ये पता नहीं होगा कि ये सेटिंग्स क्या करनी है. Okay. ठीक है, ऑफ कोर्स सेटिंग्स डिफरेंट हो जाती है. अगर मैं किसी ऑयली जिसकी ऑयली स्किन है या कोई एक्ने प्रोन स्किन है, तो डेफिनेटली मेरी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं. कुछ स्टेप्स छोड़ने पड़ते हैं. Okay. जो हम नॉर्मल में करते हैं, और ऑयली स्किन में मुझे लगता है कि मैं ये ना करूं, या एक्ने प्रोन स्किन में मैं ये ना करूं या करूं, वो डिफर करता है. सो ऑल थिंग दैट्स वेयर एक्सपर्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड कि स्किन टू स्किन टाइप दैट वे इज व्हाट कैन यू डू. Okay. अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स किस इशू के लिए आते हैं, किस चीज के लिए आते हैं? ओके, सो मेरे पास तो एंटी एजिंग के आते हैं. Okay. आई थिंक दैट्स वन थिंग. सी, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, Yeah. राइट? बट डेफिनेटली अब हम उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते हैं. हम कुछ प्रोसीजर्स करके, हम ये सब चीजें करके उसको बेटर कर सकते Okay. But do you think कि ये एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स या फिर क्रीम्स, जैसे बहुत सारी लाइक रिंकल रिमूवल क्रीम्स आ गई है, डू यू थिंक ये एक्चुअली काम करती हैं या फिर इट्स लाइक अ मार्केटिंग गिमिक? सी, मार्केटिंग गिमिक डेफिनेटली है. आप सोचो ओवरनाइट आपके रिंकल्स चले जाएंगे क्रीम से, वो तो हो ही नहीं सकता. Okay. इतनी तो क्रीम्स की पेनिट्रेशन भी नहीं है, राइट? सो इट डिपेंड्स कि पहली बात तो एक्टिव इंग्रेडिएंट पता होना बहुत जरूरी है. Okay. That's where I talk about evidence-based medicine. Okay. There are certain proven, things which cause these anti-aging के लिए जो यूज करी जाती है, वो proven है. Okay. So अगर हम उन्हीं को यूज करते हैं, लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, तो yes, they have good effect, but then overnight तो कुछ भी नहीं होता है. Okay. Another question is कि अब जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है,
like problem तो नहीं, मतलब it's a very natural process to age Yeah. and to get wrinkles, skin saggy होना. तो अब जैसे कोई स्किन सैगी हो गई है, उसको फर्म करना तो मुश्किल है काफी, बट एक प्रोसेस में है सैगी होने के, राइट? तो उससे सैग होने से बचाना आई थिंक वुड बी इजियर. सो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए, लाइक प्रिवेंशन के लिए? लाइक मे बी एक 20s में है कोई लड़की, तो उससे क्या करना चाहिए कि उसके 30s में या 40s में वो रिंकल्स ना आए? सी अब ना आए ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली कम आए. कम आएंगे. Yeah. आई वुड Yeah. से कि अगर आप स्किन केयर यू स्टार्ट योर स्किन केयर थिंग्स इन अर्ली 20s एंड अर्ली 30s ऑल्सो, देन ऑफ कोर्स वो चीजें कम होंगी. Yeah. ठीक है. So what kind of skincare do you think one should use? कि सी बेसिक चीजें वही सेम है. अल्टीमेटली हमें ना अपना स्किन में कोलाजन बढ़ा के रखना है. Okay. बिकॉज हम एज करते हैं ना, कोलाजन ही है जो कम हो रहा है. what is collagen? सो कोलाजन इज बेसिकली इन आवर स्किन, जो कि स्किन को स्ट्रेंथ देता है एंड टाइटनेस देता है. Okay. ठीक है. तो स्किन में कोलाजन चाहिए. Okay. अब हम एज करते हैं, ये कोलाजन कम हो रहा है. ठीक है. तभी आपने फिलर के बारे में सुना होगा. Okay. ठीक है. सो अगर जैसे विद एज कोलाजन कम हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, आपकी सैगिंग हो रही है, सो हम ना फिलर यूज करते हैं. ठीक है. फिलर क्या है? फिलर हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं. अब Okay. वो क्या करता है ना, अगर हमारी बॉडी में इंटरनली नई कोई चीज है, मतलब बन रही, Yeah. ठीक है, विद एज वो डेफिनेटली हमारी बॉडी का प्रोसेस स्लो डाउन होता है, वो चीज खुद से नेचुरली नहीं बन रही. Yeah. तो हम बाहर से देते हैं. ठीक है. अब ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो कि फिलर्स हैं, Yeah. अब वो दो तरीके से काम करते हैं. एक तो आपको लिफ्टिंग भी देते हैं, वॉल्यूमनाइजिंग भी करते हैं. Okay. तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिकेशंस क्या है, तो हम उसके बेसिस पे ये यूज कर सकते हैं. बेस्ट थिंग इज ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, जो कि मोस्टली लोगों को चाहिए होते हैं, Yeah. कि इंस्टेंट रिजल्ट्स आए. Yeah, exactly. अब वो चीजें क्रीम से नहीं आती हैं. But do you think इनके कोई long term side effects होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं. Okay. अब Like. हम फिलर्स जैसे, अब डिपेंड करता है कि हम किस इंडिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं. Okay. ठीक है. कई बार रेयर इंस्टेंसेस में ये फिलर जो है ये आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है एंड वहां पे इन्फेक्शन कर देता है, वहां पर ब्लड फ्लो कम कर देता है. तो ये सबसे एक रिस्की कॉम्प्लिकेशन है जो कि हो सकता है. तभी आई ऑलवेज यू शुड ऑलवेज सी दैट हु इज डूइंग द प्रोसीजर. Yeah. There's so much this thing like untrained professionals performing fillers. You don't have a degree to perform these procedures, and how risky it can get, you don't know. Yeah, exactly. Okay. अब बहुत सारे oral collagen supplements भी आ गए, right? Like in form of powder, in form of tablets. Do you think they work? See, oral collagen, they don't really work. Okay. So for I would not recommend oral collagens because long term safety established नहीं है. Okay. ठीक है. तो are there any natural ways of boosting collagen in your Yes, body? with your diet, you can take a high protein diet. Okay. Collagen is nothing but a protein. Okay. So I think in early times you can start using more of protein intake, a balanced diet. So there you can manage with it. So I don't recommend using collagen, oral collagen. एक तो bioavailability भी कम है, वो blood में उतना जाता ही नहीं है, और फिर long term side effects भी इतने known नहीं है. Okay, okay, okay. अब जैसे आपने filler mention किया, Botox भी एक common procedure है, right? What's the difference between Botox and filler? अच्छा, firstly I would like to correct you that Botox is a brand. Okay, so Really? so it's botulism toxin. Okay. ठीक है, जो आपके Really? wrinkles के लिए यूज होता है. ठीक है. Okay. तो वो मसल पे काम करता है. वो क्या करेगा, आपकी मसल की एक्टिविटी को फ्रीज करेगा. Okay. तो वो जो रिंकल्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे. फिलर जो है ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. अब इनका काम क्या है, अब वो डिपेंड करता है किस टाइप का फिलर है. Okay. ठीक है. तो वो लिफ्टिंग से लेकर वॉल्यूमनाइजिंग तक बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करता है. Okay. बट दोनों का काम ही अलग है. Okay, right. अब जैसे बॉलीवुड में भी बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स होते रहते हैं, राइट? व्हाट डू यू थिंक बॉलीवुड में सबसे कॉमनली यूज्ड स्किन ट्रीटमेंट है? आई थिंक सबसे कॉमनली यूज स्किन ट्रीटमेंट तो फिलर है. Okay. You must have seen like a lot of celebs, going for fillers. Yeah. For lips, having those big voluminous lips. Yeah. And, for cheek lifting.
एंड सबसे ज्यादा जॉ लाइन शार्पनिंग, सो आई वुड से सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर इस टाइम पे फिलर है. Okay, I would like to show you a picture. आप मुझे बताना कि ये लुक कैसे अचीव की गई है. डेफिनेटली बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है. Yeah. ठीक है, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया गया है. सी, हम फेस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट. इसमें नोज को, अब देखिए नोज के लिए ट्रीट करने के लिए 2 चीजें हैं. अब नोज को ना पतला किया गया है. अब ये फिलर से भी हो सकता है और सर्जरी से भी हो सकता है. Okay. ठीक है, तो ये किया गया है सबसे इम्पोर्टेंट. दूसरी चीज इसमें लिप एनहांसमेंट करी गई, लिप एनहांसमेंट विद फिलर्स करी गई है एंड जॉ लाइन Okay. शार्पन करी गई है. Okay. वो भी विद फिलर्स करी गई है. Okay, right. So jawline can be sharpened through fillers? Yes, filler, it can be sharpened through fillers, or certain energy based devices are also there, Okay. which can help you with that. Okay. अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखा रही हूँ. इस बिफोर एंड आफ्टर वर्जन को बहुत ट्रोल किया गया था. सबने बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं पास कर रहे थे. आई हैव गॉट नथिंग टू से विद दिस, बट मैं बस आपको दिखा रही हूँ. सो व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को ऐसा क्यों लगा होगा? या इसमें ओवरडू करा गया है. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने ml फिलर यूज करना है. Yeah. अगर आप ओवरडू कर देंगे, अब क्या हो रहा है, जो चीक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा फिलर डाल दिया गया. सो आईज को ये ओवरशैडो कर रहे हैं. लिप्स को, सी ऑल दिस इज एक एस्थेटिक. आपको पिक्चर लेना होता है कि हम डिवाइड करते हैं. आप एक्सेस किसी में भी नहीं पुट कर सकते, अदरवाइज वो एसिमेट्री लगती है. सो यहाँ पर आई वुड से कि सिमेट्री का ख्याल नहीं रखा गया एंड फिलर्स को ओवरडू करा गया. Now I want to ask you about skin whitening creams like Fair and Lovely, for example. So what's your take on that? Okay, so you are again talking about cosmeceuticals. So I am not in favor of that. Okay. Firstly, fairness is something I think one should be happy with their own skin. Okay. That's what I believe, right? So fairness नहीं, हमारा aim होना चाहिए ग्लो का. हम ग्लोइंग स्किन अचीव करने पे फोकस करते हैं और फेयरनेस अचीव करने पे नहीं. Yeah. अब इसी चक्कर में आप देखेंगे बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स हैं जो क्लेम करती हैं कि स्किन वाइटनिंग कर देंगी, बट एक्चुअली है ऐसा? ऐसा बिल्कुल नहीं है. Okay. बिकॉज स्किन वाइटनिंग करना, अब उसमें डेफिनेटली आप देखिए इसी की वजह से एक चीज है जो कि बहुत सारे जिसके मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो है टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेसेस. मतलब कि जैसे कि ये लोग जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं, इनमें ना स्टेरॉइड डाल दिया जाता है. Really? यस, Oh my God. स्किन वाइटनिंग क्रीम्स में स्टेरॉइड डाल देते हैं बिकॉज स्टेरॉइड्स का ना, जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं, उनका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो स्किन को लाइटन करता है. Okay. ठीक है, बट ये लॉन्ग टर्म लगाने से क्या होता है, ये लाइटनिंग नहीं, ये आपकी स्किन का एक अल्कोहल बन जाता है. सो ओके, आपने 2 महीने से आप लगा रहे हो वाइट स्किन वाइटनिंग क्रीम जिसमें स्टेरॉइड है, आप उसे छोड़ोगे, आप उसे छोड़ ही नहीं पाओगे. Okay. आपकी स्किन को उस चीज की आदत हो जाती है. ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे आप उसको छोड़ने का ट्राई करते हो, आपकी स्किन रेड हो जाती है, इचिंग हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाता है, एंड देन यू कांट लीव इट. Okay. So eventually get into this vicious circle of using steroids all the time and your skin is That's permanently crazy. damaged. Not even God. lightening, you'll develop excessive hair on your face. So this is something I want to raise awareness about, कि don't go for this skin lightening cream. Please check the ingredients. स्टेरॉइड है तो आपका फेस परमानेंटली खराब कर देगा. हम भी स्टेरॉइड क्रीम देते हैं, बट स्टेरॉइड क्रीम के पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं. Okay. ठीक है, किसी को इन्फ्लेमेशन है, कितने दिन देना है, कौन सा देना है, ये चीजें मैटर करती हैं. Yeah. आप वाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली एंड ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. बिकॉज इसका एक इशू और भी है कि ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम्स मिल रही हैं, वाइटनिंग क्रीम्स मिल रही हैं. सो अंशिका, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि स्टेरॉइड्स का ना एक साइड इफेक्ट होता है स्किन लाइटनिंग. ठीक है, इस साइड इफेक्ट को ही यूज करते हैं. अब लेकिन क्या है ना कि ये हमें लगता है कि स्किन लाइटनिंग हो रही है, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में वो एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन बन जाती है. जिसे हम कहते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेसेस. एक तो ये ओवर द काउंटर मिल जाती है, सबसे पहली बात ये, इसीलिए इसके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं. सो ये आप समझिए कि ये हमारे स्किन के लिए एक अल्कोहल की, जैसे एक अल्कोहल हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, ये
जो स्टेरॉइड्स हैं हमारी स्किन के लिए एक अल्कोहल की तरह हो जाते हैं. Okay. स्किन हमारी एडिक्टेड हो जाती है. ओके. ओके सो आपने अगर इसको यूज नहीं करा कुछ दिन तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी, इरिटेबल हो जाएगी, फिर आप लगाएंगे ठीक हो जाएगी, तो इवेंचुअली एक विशियस साइकिल बन जाती है कि आप उसको रोक ही नहीं पाते. ओह, that's shocking. Yeah, so this is something I want to raise awareness about. Please check the ingredients. क्या इसमें स्टेरॉइड्स हैं? तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे वाइटनिंग क्रीम्स के पीछे ना जाएं. राइट. या प्रॉब्ली इंडिया में ये माइंडसेट इसलिए भी बना था बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एंड उस टाइम पर जो रिचर लोग होते थे आई वुड से एंड मोर पावरफुल जो लोग होते थे वो ऑफ कोर्स एक सर्टेन टाइप का कॉम्प्लेक्शन होता था उनका, सो मे बी इंडियंस यूज्ड टू लुक अप टू देम एंड देन वही माइंडसेट बन गया. बट आई थिंक नाउ इट्स चेंजिंग एज वेल. इनफैक्ट फेयर एंड लवली ने भी अपना नाम चेंज करके ग्लो एंड लवली कर दिया. Yes. सो यस, आई होप एंड आई विश कि माइंडसेट ना रहे लोगों का एंड दे शुड बी हैप्पी विथ their own skin color and in their own skin of course. Yes, definitely. Yeah. अब बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वजह से आईवी ड्रिप्स एंड ऑल बहुत फेमस हो गई है, राइट? सो आईवी ड्रिप्स एंड लाइटनिंग का, स्किन लाइटनिंग का या फिर स्किन ग्लो का क्या रिलेशन है? एंड मैं आपको एक फोटो दिखाने वाली हूँ. इसमें इन्होंने क्या ट्रीटमेंट करवाई है? ओके सो ये एक न्यूज आई थी कि बहुत मतलब आईवी ग्लूटाथियोन लगाया गया है, यू नो. सो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आईवी ग्लूटाथियोन फेमस ही इसी के बाद हुआ था. Okay. बिकॉज ये न्यूज थी कि आईवी ड्रिप्स लगी हैं, Okay. राइट? अब ग्लूटाथियोन क्या है? ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है. ग्लूटाथियोन बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहा है. ग्लूटाथियोन बहुत फॉर्म्स में आता है. ग्लूटाथियोन ओरल भी आता है, ग्लूटाथियोन आईवी भी है और ग्लूटाथियोन सबलिंगुअल भी है. ओके. सो सी आईवी फेमस इसलिए हुआ क्योंकि आईवी के कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि आप आईवी से डायरेक्टली ग्लूटाथियोन हमारी ब्लड में जा रहा है. सो इससे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी. ओके. सो वो बहुत अच्छी हो जाती है. ऑलमोस्ट जितना, इसका मतलब ये है कि जितना हमने ग्लूटाथियोन दिया उतना ब्लड में चला गया. ओके. अब वही चीज ओरल में जो क्या है कि आपने कुछ दिया, कुछ लिवर के थ्रू पास हुआ, तो वो पूरी तरह ब्लड में नहीं जाता. आजकल लिपोसोमल ग्लूटाथियोन बहुत Yeah. फेमस हो रहा है ना? Yes. यू थिंक इट एक्चुअली वर्क्स या फिर ऐसी है? नहीं, लाइपोसोमल से डेफिनेटली ये सब इसलिए बनी गई है फॉर्मुलेशन ताकि बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो. बट डेफिनेटली सबसे बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी तो आईवी की ही है. लेकिन आईवी हमें ये समझना है कि आईवी का एक बेनिफिट तो है, बट लेट लुक एट द कॉन एस्पेक्ट ऑल्सो. सी अब आप आईवी थेरेपी लॉन्ग टर्म के लिए दिए जा रहे हो तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं. सबसे पहली बात तो ऐसे कॉमनली आप घर पे आईवी ड्रिप्स नहीं लगवा सकते. अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जब ग्लूटाथियोन देते हैं, सो सी इमीडिएट रिएक्शंस भी हो सकते हैं, डिलेड रिएक्शंस भी हो सकते हैं. Okay. ठीक है. सो इमीडिएट रिएक्शन में यू नो आपको शॉक में भी जा सकते हो आप. ओके. सो डिपेंड करता है. अगर आपको ग्लूटाथियोन से आप एलर्जिक हो तो आप शॉक में भी जा सकते हो. Okay. इतना सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकता है. और लॉन्ग टर्म की सेफ्टी तो अभी एस्टैब्लिश ही नहीं है. सो जस्ट थिंक ट्वाइस कि आप आईवी थेरेपीज ले रहे हैं तो आप एक अंडर मेडिकल सुपरविजन और एक हॉस्पिटल सेटिंग में लें. और दूसरी चीज ये है कि आप जो है कि मतलब इसको इतना लॉन्ग टर्म ना चलाएं बिकॉज लॉन्ग टर्म सेफ्टी नहीं है. ओके. 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 अभी पीछे थोड़े टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि केराटिन ट्रीटमेंट कराने से हेयर के लिए एक लड़की की किडनी डैमेज हो गई. तो डू यू थिंक केराटिन का किडनी से कोई रिलेशन हो सकता है, किडनी डैमेज से? ऐसी रिपोर्ट्स आई थी डेफिनेटली. अब क्या है, ये जो हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अगर हम उसको बार बार कराते रहते हैं तो इनका ना सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है. ओके. ठीक है. अगर वो लोकल तक रहता है तो ठीक है, बट चीजें जब सिस्टमिकली चली जाती हैं, वो जहां से एक्सक्रीट होती हैं जैसे किडनी, इन पे ये इफेक्ट कर सकती है. ओके. ओके. सो अभी ना मुझे थोड़े टाइम से काफ़ी पिंपल्स हो रहे थे एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑनलाइन तो आइसोट्रेटिनोइन बहुत बार अपीयर हो रहा था. सो व्हाट डू यू थिंक इज आइसोट्रेटिनोइन एंड क्या ये माइल्ड एक्ने के लिए यूज हो सकता है? ओके सो अंशिका, आइसोट्रेटिनोइन एक विटामिन ए डेरिवेटिव है जो कि मॉडरेट टू सिवियर एक्ने के लिए यूज किया जाता है. माइल्ड में अगर हम यूज करेंगे तो इवन फ्लेयर अप्स भी हो सकते हैं. Okay. सो इट्स नॉट फॉर द माइल्ड एक्ने. ओके.
ओके, एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफेक्ट, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। पहली बात तो हम इसको रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नहीं देते हैं, या Okay. फिर कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो या फिर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो, तो हम वी टेंड टू अवॉइड दिस, Okay, किस okay. इट्स अ कैटेगरी एक्स्ट्रा। ओके, एंड अदर साइड इफेक्ट सबसे कॉमनली, अगर आप आइसोट्रेटिनोइन स्टार्ट करेंगी तो आपको ड्राइनेस शुरू हो जाएगी, ओके, ठीक है। ये ड्राइनेस लिप्स पे आ जाएगी, आईज पे आ जाएगी, स्किन पे आ जाएगी। सो ड्राइनेस इज वन ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट। ओके। आजकल फेस योगा बहुत कॉमन हो रही है, बहुत फेमस हो रही है. डू यू थिंक फेस योगा एक्चुअली हेल्प्स? सी, इफ यू आर सीकिंग इंस्टेंट सोल्यूशन के इंस्टेंट आपको एक सैगिंग खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, देन फेस योगा इज नॉट फॉर यू, ओके, ठीक है। तो फेस योगा, हाउ इट इज वर्किंग इज अल्टीमेटली इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर फेस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। या, सो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, ओके, ओके. सो अंशिका, मैं एक शो के बारे में बताना चाहती हूँ। आपने बॉलीवुड वाइब्स देखा होगा, तो उसमें क्या है कि भावना है, नीलम है, ठीक है। ये ना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। भावना wanted to go for face yoga for the Yeah, glow, okay. and नीलम wanted to go for fillers, Okay. ठीक है। देखो, दोनों के अपने बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो डेफिनेटली फिलर्स इज वन थिंग दैट यू शुड गो टुवर्ड्स, ओके। Okay, बिकॉज instant वो आपको, results. यस, इंस्टेंट रिजल्ट तो फिलर से ही आएगा, ठीक है। yeah. तो ऑन टेबल इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो फिलर के लिए जाइए, लेकिन हाँ, फेस योगा आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स देगा। Okay. बहुत लॉन्ग टर्म आपको, वो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा रहा है टुवर्ड्स द फेस, बट वो ऐसे फिलिंग इफेक्ट नहीं दे देगा आपको कि लॉन्ग टर्म वाली चीज है वो। या, हाँ। अब जैसे एक ना स्टार्टअप खुला है नया, सॉरी, एक न्यू एज कंपनी स्टार्ट हुई है. आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, बट बेसिकली द ओनर हु स्टार्टेड, शी इज दिस योगा, फेस योगा एक्सपर्ट, एंड वो कहती है कि मैंने अपनी फेस शेप चेंज कर ली थ्रू फेस योगा. यू थिंक दैट्स पॉसिबल, या फिर सिर्फ ग्लो के लिए ओके है, अच्छा है, पिंपल्स रिड्यूस करने के लिए ठीक है? नहीं, फेस योगा से आपकी शेप चेंज नहीं हो सकती है, Yeah. ठीक है। फेस योगा से आप मसल की टोनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर आप सोचो कि अब मैं फेस योगा कर रही हूँ और मैं सोचूं कि मेरी जो सैगिंग हो रही है वो ठीक हो जाए, वो नहीं हो सकती है, ओके, ओके, ठीक ओके, है। ओके, राइट. लॉन्ग टर्म फेस योगा करने के इफेक्ट्स हैं, बट ऐसे कुछ शॉर्ट टर्म में और इंस्टेंट रिजल्ट्स वाली चीज नहीं है फेस ओके, योगा। ओके, ओके. अब बहुत सारी लेडीज एंड इवन गर्ल्स फॉर मैटर ऑफ फैक्ट बहुत रेगुलर फेशियल्स एंड क्लीन अप्स करवाती हैं सैलून्स में जाकर, मे बी एवरी 10 days. यू थिंक दैट्स रिक्वायर्ड, और इज इट एक्चुअली सेफ फॉर द स्किन, या वो इरिटेशन कॉज करती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है? डेफिनेटली अंशिका, रेगुलरली रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरी 7 to 10 days अगर आप करा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अपने फेस का स्किन बैरियर खराब ही कर रहे हैं, ठीक है। स्किन बैरियर रिस्टोर करना है, खराब नहीं करना। अगर दो आप कुछ करना चाहते हैं डेली बेसिस, कुछ इंपॉर्टेंट, वो दो चीजें हैं। एक तो आप सनस्क्रीन लगाइए, एक आप मॉइस्चराइजर लगाइए, उसी से स्किन बैरियर रिस्टोर रहेगा। तो एवरी 7 to 10 days आपको क्लिनजिंग, क्लीन अप्स एंड फेशियल्स के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके, राइट. व्हाट्स योर टेक ऑन बर्स्टिंग पिंपल्स? बहुत लोग जल्दी हटाने के लिए पिंपल्स उनको बर्स्ट कर देते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Okay, so see, pimples burst करना is the worst thing you can do to your skin, because क्या है, आप pimples तो आपने हटा दिए, लेकिन पिगमेंटेशन छोड़ दी। अब पिगमेंटेशन ट्रीट करना और पिंपल ठीक करने से ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, ओके, ठीक है। सो मैं पिंपल बर्स्ट करने के टोटली अगेंस्ट हूँ। आप चाहे शॉर्ट टर्म हो या आपको कल कहीं जाना है और आप सोचो पिंपल बर्स्ट कर दे, तो वो चीज मैं रिकमेंड नहीं करती। आप पिगमेंटेशन ही इंड्यूस कर रहे हैं स्किन में। okay, okay. One more thing I would like to add to this कि I just have this thing, मैं पिंपल बर्स्ट कर देती हूँ बहुत ज़्यादा. So my mom always says कि निशान रह जाएगा, निशान रह जाएगा. So what to do with that निशान, like गड्ढा, like they say, like it kind of forms a pit, तो वो pit कभी treat नहीं होता. That's what moms think, and that's what I think most people think. तो do you think उसका कोई treatment है available, या फिर उसका कोई treatment नहीं है, we have to live with it? डेफिनेटली ट्रीटमेंट है,
ठीक है, पहली बात तो आपने एक्ने को हटाया, उसको बर्स्ट किया, तो आप अल्टीमेटली ना एक्ने को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब उसके कॉम्प्लिकेशन में ना दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है पिगमेंटेशन, एक है पिट्स। Okay. दोनों ही डिफिकल्ट टू ट्रीट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको एक्ने पॉप नहीं करना है। ठीक है, दैट्स माय एडवाइस। Yeah. ठीक है, अब अगर पिगमेंटेशन और पिट्स आती हैं तो उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सी अल्टीमेटली क्या करना होता है, पहली बात ना ये पिट्स में ना ये क्रीम्स काम नहीं करती है। सो बाइंग एक्सपेंसिव क्रीम्स एंड एवरीथिंग दे डोंट वर्क। Okay. सो हमारा जो एम है वो ये है कि हम कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाएं फ्रॉम बीनीथ, Okay. तभी वो लेवल्ड अप होती है। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, माइक्रो नीडलिंग है, फ्रैक्शनल CO2 लेजर्स हैं, और भी बहुत केमिकल पील्स हैं, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे वो करेक्ट हो सकती हैं। Okay. अभी आपने जैसे मेंशन किया केमिकल पील के बारे में. So when I was studying abroad, so I was interning with this skincare company called BAME Skincare. So basically, जो owner थी, जो founder थी, she started this brand on the basis कि chemical peels जो होते हैं basically, या फिर skin care होती है जो, वो white skinned people के लिए and black skin या फिर dark skinned people के लिए completely different होती है. So do you think that's true? सी ये स्किन टाइप का चीज ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें ये है कि कुछ चीजें ना डार्कर स्किन टाइप में ना और ज्यादा पैराडॉक्सिकल हाइपर पिगमेंटेशन कर सकती है और उसको डार्क कर सकती है। Okay. ठीक है, तो ये चीज है। सो इसीलिए आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट को केटर किया जाता है। अब आप केमिकल पील का एग्जांपल दे दो एक, डार्क स्किन पे वो कैसे बेकार हो सकता है? अब जैसे आप TCA पील के बारे में, ठीक है, आप TCA पील जो है अगर जब हम इसे डार्क स्किन पे करते हैं तो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो उसको और डार्क कर सकता है। Okay. ठीक है, सो वन शुड बी वेरी केयरफुल, दिस जस्ट एन एग्जांपल, बट ऑल आई वांट टू से इज कि डेफिनेटली हमारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें उसको वी हैव टू टेलर इट, Yeah. वी हैव टू कीप इन माइंड द स्किन टोन एज वेल। Right. Okay. What's the best way to remove tanning? Best way to remove tanning is with chemical peels. Okay, chemical peels. Yes. And okay. And tanning को prevent कैसे कर सकते हैं? What kind of sunscreen do you think is the best kind of sunscreen? ओके, सो टैनिंग को प्रिवेंट करने के लिए सनस्क्रीन से टैनिंग होती है UVA रेज की वजह से। Okay. ठीक है, मेनली सो टैनिंग को अगर प्रिवेंट करना है, जो हम सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ SPF नहीं देखना है उसमें कि SPF 30 है 50 है, हमें उसमें एक फैक्टर देखना होता है, PA फैक्टर। Okay. सो आप अपनी सनस्क्रीन में वो जरूर चेक करिए कि उसमें Okay. PA फैक्टर है कि नहीं है, PA++ है कि नहीं। अगर Okay. वो है तो वो UVA प्रोटेक्शन अच्छा दे रहा है और वो आपकी स्किन को टैनिंग से प्रिवेंट करेगा। Okay, so like SPF, PA++. Yes, so both the things should be there. Yeah. Oh, actually मैं हमेशा सिर्फ SPF देखती थी. ये PA++, I don't think I ever paid heed to it, but yeah, that's interesting. We'll keep that in mind. Now I want to ask you about vampire facial. ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था पीछे, blood से facial करते हैं. What do you think of it? वो बहुत scary लगता है देखने में. So what do you think? Is it actually like good for your skin या फिर it's like just a fad? सी वैम्पायर फेशियल क्या है, वैम्पायर फेशियल ना दो चीजों को ना कंबाइन करता है। ठीक है, एक होता है माइक्रो नीडलिंग विद PRP। Okay. ठीक है, इसी के कॉम्बिनेशन को हम वैम्पायर फेशियल कह रहे हैं। Okay. सो फेशियल रीजनरेशन डेफिनेटली करता है। जो माइक्रो नीडलिंग के बेनिफिट्स हैं कि वो कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाना, फेशियल रीजनरेशन करना अलोंग विद PRP, वो रिजल्ट्स तो अच्छे देता है। ठीक है, Okay. तो बट डेफिनेटली करा सकते हैं। Yeah. Okay. Micro needling क्या होती है? To be specific. ओके, सो माइक्रो नीडलिंग में ना दो डिवाइसेस आती हैं। माइक्रो नीडलिंग के लिए एक डर्मा रोलर आता है, एक डर्मा पेन आता है। Okay. ठीक है, सो डर्मा रोलर में भी नीडल्स हैं। ठीक है, अब ये हमारे जब हम स्किन पे करते हैं तो अल्टीमेटली हम स्किन में ना माइक्रो ट्रॉमास इंड्यूस कर रहे हैं। Okay. वो माइक्रो ट्रॉमा से कोलाजन का प्रोडक्शन हो रहा है। Okay. So now we're going to play a game. It's a myth and fact game. मैं बस कुछ sentences बोलूँगी, आपको बताना है कि वो myth है या fact है. So first question is कि जब आप खुद से derma rollers करते हो अपने skin पर for lifting or tightening whatever, तो वो actually worsen करता है आपकी skin को. You think that's true?
Yes, because of the fact, because आपको पता नहीं आप कितने डीप जा रहे हो, आप उल्टा और इरोजन्स क्रिएट कर सकते हो फेस पे. Okay. Masturbation can cause acne. Myth. It can cause wrinkles. Myth. जितना ज़्यादा SPF होता है सनस्क्रीन का वो उतनी बेटर होती है. Myth. ऐसा कुछ नहीं है. Anything above SPF 30 and you have to reapply, it's good. Really? Yes. I'll share a personal story. I remember मैं थोड़ा टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी and वहाँ पर I had to buy a sunscreen for myself and 200 से भी ज़्यादा SPF की सनस्क्रीन थी तो मतलब it's completely waste. No, it's not required. See, we are in India. It's that's what I'm saying. It depends from region to region. But in India, if we say SPF 30, with reapplications is good to go. Okay. Exfoliation twice a week is good enough. Yeah, fact. So, chemical peels at home are safe. Like, I'll give you an example. Like, chemical peel kind of product है, like scrub type. I've used it myself. So basically, you take that product, आप उसको अपने face पे rub करो, scrub करो, and आपकी dead skin एकदम instantly निकल जाती है. You think that's safe to use? But उसके बाद एकदम instant glow भी आता है. वो बहुत temporary होता है. Yeah. So it's a myth. Okay. Firstly, you should not apply these products by yourself. Okay. These products are not even available. When we talk about chemical peels, there are good percentages. Let me just give you an example, like the glycolic acid you have been using it. So they are available in like 1%, 2%, or maybe like maximum up to 12% in creams. Okay. But the chemical peels, they have, it goes up to 33%, 50%. So it goes higher. So chemical peels, they cannot be done at home. Okay. Okay. आपको सनस्क्रीन सिर्फ धूप में जाते हुए लगानी चाहिए. ये मिथ है. सनस्क्रीन यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है. आप घर पे भी हैं, रेनी वेदर भी है, तो तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी है. ओके. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजर की कोई जरूरत नहीं है. मिथ. मॉइस्चराइजर किस बेस में यूज कर रहे हो? आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, वो फेस को ऑयली और नहीं करेगा. अब जिनकी ऑयली स्किन है उनको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर थोड़ा अवॉइड करके जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए. बिकॉज मॉइस्चराइजर ना आपका बैरियर रिस्टोर कर रहा है. वो एवरीबडी नीड्स अ गुड बैरियर. या. ओके. एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डे 1 से काम करने लग जाते हैं. लाइक मे बी 1 वीक का कोर्स ले लो या फिर 3 मंथ्स का कोर्स ले लो, काम 3 मंथ्स में रिंकल्स खत्म. मिथ. ओवरनाइट काम नहीं करते हैं क्योंकि वो स्किन में लगाते ही स्किन में एब्जॉर्ब ही नहीं होते. इंस्टेंट रिजल्ट्स कभी भी आपको इन एंटी एजिंग क्रीम से नहीं आएंगे. ओके. डार्क सर्कल्स हैपन ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप ओनली. मिथ. मल्टीफैक्टोरियल थिंग, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. जेनेटिक्स से लेकर स्ट्रेस से लेकर लैक ऑफ स्लीप एंड इवन ड्यू टू स्पेक्स. People who are using specs, their eye muscles are used more. Okay, so those people have hollowness, which can also lead to dark circles. And even there is a vascular component as well. Okay. Icing helps with clogged pores. Myth. No? तो बहुत अब जैसे एक वायरल हो रही है रील कि बहुत सारे ठंडे पानी में वो तो सर्कुलेशन बढ़ाता है ना अल्टीमेटली. आपने ठंडे पानी से मुंह धोया, वो सिर्फ ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ा रहा है फेस में बस. ओके. वो मिथ है. तो उससे पोर्स श्रिंक नहीं होते? नहीं. ओके. That's interesting. What are your top 3 anti-aging ingredients? Okay, so my first is retinol, then is bakuchiol and hyaluronic acid. Okay. Laser hair removal causes cancer. So it's a myth because these are safe technologies. They use non-ionizing rays, which they doesn't cause cancer. Absolutely safe. Okay, I hope all moms are watching this. I've been after my mom कि मुझे कराना है full body laser, but she doesn't allow me. She says कि नहीं, causes it's harmful and all. So I hope you're listening to that. So yes, it is completely safe. Okay. Now tell me, what do you think about UV light treatment? Like red light होती है, blue light होती है, right? What is your take on that sort of treatment? I personally don't recommend using these lights for the tightening purpose and for
glow purposes, because there are many other things for that. Why do we want to expose ourselves to those LED lights? So I would say no. Do you think birth control pills या फिर oral contraceptive pills का कोई relation है with pimples? सी बर्थ कंट्रोल पिल्स तो कुछ एक्ने में दी जाती हैं, जैसे कि हार्मोनल एक्नेज होते हैं, ठीक है। अब वो हार्मोनल एक्नेज जो होते हैं उनमें हम ओसीपी देते हैं Okay. टू गेट रिड ऑफ दोज एक्ने। Okay. अब जैसे किसी को पिंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने है, तो उन्हें मेकअप यूज करना चाहिए? सी अब आई वुड से नो, बिकॉज अल्टीमेटली आप एक बैरियर बना रहे हो, ठीक है। लॉट ऑफ मेकअप ऑन एक्ने, एक्ने कैन वर्सन इट, सो I would not recommend that. Okay. Maybe you But- can use, light products. Okay. Maybe a little bit light foundation, and those kind of products can work. But using heavy foundations, heavy makeup definitely can worsen your acne. Okay. Okay. So last question. बहुत सारे जैसे मैंने देखा है डर्मा क्लिनिक्स में ना होता है लिखा हुआ फैट कटिंग प्रोग्राम, स्लिमिंग प्रोग्राम. You think ये एक्चुअली वर्क करते हैं? सी दो तरीके हैं इस चीज को करने के, एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक होता है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो जो जिन डिवाइसेस की आप बात कर रही हैं वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में आती हैं, Yeah. बट सी ये ना अलोन काम नहीं करती है। सो इफ यू सी यू गेटिंग फॉर दीज ट्रीटमेंट्स एंड नॉट फॉलोइंग योर डाइट थिंग, इट विल अगेन कम बैक। So I would say these results are temporary with these machines. Okay. Right. Okay. Okay. So last question. Gut health का acne से या फिर skin से क्या relation है? डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ डर्माटोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उनका गट हेल्थ से रोल है। Okay. जैसे कि मैं बात करूंगी एटोपिक डर्मेटाइटिस, Okay. ठीक है, सोरियासिस, और फॉर दैट कॉज एक्ने आल्सो। तो हमारी बॉडी में ना हमारे खुद के बैक्टीरियाज हैं, अगर बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं तो क्या करते हैं ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। Okay. अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो कुछ कंडीशंस जो है वो वर्सन हो जाती है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, एक्ने हो गया। सो ऐसी कंडीशंस में हम प्रोबायोटिक्स भी देते हैं। Okay. Okay. One more question. साफी बहुत फेमस हुई थी काफी टाइम पहले फॉर एक्ने. यू थिंक कि कुछ काम की थी आपको लाइक गट? जी साफी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके पहली बात तो कंपोनेंट्स इतने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करे गए हैं, Okay. ठीक है। सो ब्लड वो क्लेम करते हैं कि वो ब्लड प्यूरिफाई करती है, बट मेरे अकॉर्डिंग वो एक्ने पे काम नहीं करती है। Okay. So that was all for today, guys. Thank you so much, Dr. Gitika, for being with us today and giving us your precious time. And thank you so much for providing us with such valuable insights. थैंक यू अंशिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एक्चुअली। Thank you.